Hello students, we were seeing chapter number 4 in economics, functions of commercial banks. We will see the second function, saving in accepting deposits. We have seen first one, that is current account deposits in accepting deposits. Now we will see the second point, savings account deposits. People usually deposit savings for a short period in this account for which banks give them interest. So if we have excess money, we can deposit that particular excess money in a bank on which bank will pay us the interest. Upon requirement, they can withdraw with a check or withdrawal slip. If we require that money, we can withdraw either with a check, that is a bearer check, or a withdrawal slip is available in the bank. We can make use of withdrawal slip and we can withdraw the money. In present times, they can also withdraw money from this account by using debit card or credit card. We can also withdraw in ATMs with the help of debit card or credit card. There is a facility of recurring account, that is a recurring deposit. Recurring means what? Regular basis. On regular basis you have to deposit some amount in a bank. So we can also create or we can also make use of recurring amount. These deposits are also a type of saving deposits. People who do not wish to save or cannot save bigger sums of money save and deposit small amounts each month for some period of time in this account. What is a recurring? That is regular account or recurring deposit account. It means if we do not have a huge amount of money, or if you do not have a if we do not want to invest money in lump sum, so you can invest every month. Every month you receive salary. How can you out of that you can save rupees 1000 and open a recurring account in a bank. ठीक है. सो आपके सैलरी अगर 10,000 रुपीज़ है तो उसमें से आप 1000 एवरी मंथ बचा के रिकरिंग अकाउंट में जमा कर सकते हो, ताकि वो आपको धीरे धीरे आपका डिपॉजिट बढ़ता जाए. ठीक है, आपका एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है ये. तो आउट ऑफ 10,000 रुपीज़ यू कैन सेव 500 और 1000 रुपीज़ एंड डिपॉजिट इन अ अकाउंट दैट इज़ कॉल्ड एज रिकरिंग अकाउंट. Thus the savings gradually increase and interest is paid on the accumulated money. तो पैसा इकट्ठा होता जाएगा. अगर हम हर महीने 500 या 1000 रुपये भरते रहेंगे तो पैसा हमारे अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा और फिर बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देगी. Thus these deposits are called recurring deposit. मतलब एक साथ में डिपॉजिट नहीं करना होता, हमें इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करना होता है. मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं हर महीने 500 रुपये जमा करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, अपनी सैलरी में से 500 रुपये बचाने की कोशिश करूँगी और मुझे 500 रुपये कंपलसरीली ये अकाउंट में भरना पड़ेगा. By rules of some banks, if a person keeps to deposit someone's money in this account, she or he may have to pay a penalty along with some interest loss. इसमें पेनल्टी लगती है. अगर आप कोई महीने में पैसा जमा करना भूल गए तो आपका ये अकाउंट में 500 रुपये या 1000 रुपये भरना एक कंपल्शन हो जाता है, और अगर आप उसमें फ़ेल होते हो तो आपको पेनल्टी लग सकती है और कुछ इंटरेस्ट भी कम आपको मिल सकता है, इंटरेस्ट लॉस हो सकता है. अदर डिपॉजिट है फिक्स यानी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, जो आपको एक ही बार करनी होती है और फिर वो आप कब विड्रॉ कर पाओगे, जब उसकी मैच्योरिटी डेट होगी. अगर आप उसको मैच्योरिटी डेट के पहले विड्रॉ करोगे तो आपको उसमें पैसा काटा जाएगा, पैसा कम मिलेगा. ठीक है. सो दिस डिपॉजिट्स आर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड यूजुअली पीपल हु वांट टू डिपॉजिट मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चूज सच डिपॉजिट्स. बैंक्स पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स, क्योंकि पैसा जो है हमारा जमा रहेगा ज़्यादा टाइम के लिए, तो बट ऑब्वियस है बैंक भी अपना इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा देगी हमें. अमंग ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कस्टमर्स गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ ऑन सच डिपॉजिट्स. इसका मतलब क्या है कि हम फिक्स डिपॉजिट को गिरवी रख के, मॉर्टगेज करके या फिर एज ए सिक्योरिटी रख के हम लोन ले सकते हैं कंपनी में से, बैंक में से. तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या कि अगर हमारे पास 50,000 की एफडी है और हमें 60,000 की ज़रूरत है, तो हम 60,000 रुपये एज अ लोन की तरह बैंक में से ले सकते हैं. ठीक है. तो ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, जितना पैसा होता है उससे ज़्यादा की ज़रूरत हो तो हम उसको लोन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लोन की तरह बैंक में से ले सकते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, मतलब लोन देना। When individuals or businesses require money for personal or investment purposes, they borrow from banks and banks provide credit by charging a rate of interest. In terms of time period, borrowing oblique credit can be for short term, medium term or long term. This time periods are not strictly fixed and may vary for different activities. However, in a theoretical sense, short term is a period up to 1 year, medium term is a period between 1 and 5 years and long term is a period between 5 and 15 years. तो इस तरह का टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है। जिनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एज अ फिक्स डिपॉजिट तरीके से रख सकते हैं। और ये जो प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी का फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि हम बैंक में से बोरो कर सकते हैं पैसा, यानी कि लोन ले सकते हैं और बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अभी जो पैसा हम बोरो कर सकते हैं उसके पर्पस डिफरेंट होते हैं और उसका टाइम पीरियड 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, जो कि ईयर्स में डिफाइन किया गया है, ठीक है। हम किसी भी पीरियड के लोन को बोरो कर सकते हैं, उसके सामने हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा और रेगुलर EMIs भी हम भरने पड़ेंगे। हम लोन फिर इंस्टॉलमेंट में वापस बैंक को कर सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्पस, क्रेडिट कैन बी फॉर पर्सनल रीजंस, फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी और फॉर बिजनेस एक्टिविटी। तो लोन का पर्पस क्या होता है, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है या फिर घर ख़रीदना है या फिर ज्वेलरी ख़रीदनी है, कुछ भी हो सकता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल बिजनेस में हूँ या फिर मेरा खुद का कोई बिज़नेस होता है, उसके लिए भी मैं लोन ले सकती हूँ। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो वेरी होगा पर्पस के हिसाब से। अलग अलग बैंक से वो अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट को चार्ज करती है, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स होगी उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, गवर्नमेंट बैंक्स का थोड़ा कम होता है और कोऑपरेटिव बैंक्स होती है उनका और भी कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से बैंक के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी डिफ़र करता है और आप किस पर्पस के लिए वो लोन ले रहे हो उस पर भी वो डिपेंड करता है। तीसरा है पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटीज़। अ बैंक प्रोवाइड्स इजी पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ चेक। आप चेक से विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉवल स्लिप से कर सकते हो, ड्राफ्ट से विड्रॉ कर सकते हो, पे ऑर्डर से विड्रॉ कर सकते हो, ATM मशीन से विड्रॉ कर सकते हो जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स। क्रेडिट डेबिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हो और ऑनलाइन भी विड्रॉ कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग के हिसाब से आप एक खाते में से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी तरह से पेमेंट या फिर विड्रॉवल फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट मतलब क्या कि मुझे एक पार्टी से एक खाते में से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना है या फिर किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है। और विड्रॉवल मतलब क्या, मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा चाहिए तो मैं ATM में से विड्रॉवल करूँगी विद द हेल्प ऑफ द डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करने जाओगे, आप ज़िंदगी में एक बात याद रखना, आप क्रेडिट कार्ड को कभी यूज़ मत करना विड्रॉवल के लिए, आपके बहुत चार्जेस लगेंगे। आप विड्रॉवल के लिए सिर्फ डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए। अगर आप ATM में जा रहे हैं तो, अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप डीमार्ट जा रहे हो या फिर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड आसानी से यूज़ कर पाओगे। तो क्रेडिट कार्ड के जो पर्पसेस हैं उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। विड्रॉवल फ्रॉम ATM यूज़ ओनली एंड ओनली डेबिट कार्ड, ठीक है। चौथा फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन, मतलब लोन देना, मतलब किस तरह से क्रेडिट को क्रिएट करना है। बैंक्स अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन टू एंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फुलफिल्स द डिमांड फॉर मनी। बैंक्स क्रिएट मनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मनी। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, पैसा लेती हैं, thereby add to the supply of the money in the economy. When credit creation by bank increases, the supply of money increases, and when credit creation decreases, the supply of money reduces। मतलब बैंक कई तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और उन पे इंटरेस्ट पेमेंट देती है। इस तरह बैंक सर्कुलेशन ऑफ मनी में हेल्प करती है। When a bank lends money from primary deposits, the borrower has to open an account with the same bank or another branch in order to deposit the check of the loan borrowed sum of money. When the check is credited in the new account, it becomes a derived deposit
for the bank. From this derived deposit, the bank can create still another loan account for a third person. The third person's loan become one more deposit for the bank. Thus a bank can create several deposits from a primary deposit. इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोन लेने जाएँ बैंक में, ठीक है, तो आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपका उनमें कुछ लिमिट होते हैं कि मिनिमम इतना बैलेंस चाहिए, मिनिमम 1000 रुपये बैलेंस चाहिए, या मिनिमम 3000 रुपये बैलेंस चाहिए, या मिनिमम 5000 रुपये बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक सेविंग अकाउंट खुलवाओगे अगर आपको लोन चाहिए बैंक में से। तो बैंक के लिए आपने जो पैसा भरा, आपने जो सेविंग अकाउंट खुलवाया, बैंक के लिए वो क्या हुआ, इनकम हुई, एक तरह की डिपॉजिट हुई। तो वो जो पैसा है वो और किसी को एज अ लोन तरीके से वापस दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पैसा जो है वो बैंक में नहीं रहता, वो सर्कुलेट होता रहता है, और इस तरह से पैसा जो है वो घूमता रहता है बैंक और कस्टमर्स के बीच। तो आप जो डिपॉजिट करोगे वो किसी और को एज अ लोन तरीके से दे देगा वो, और अगर थर्ड पार्टी को भी लोन चाहिए तो वो एक और डिपॉजिट करेगा, और वो बैंक जो है वो किसी और दूसरी थर्ड पार्टी को दे देगा। इस तरह से पैसा क्या होगा, घूमता रहेगा, ठीक है। बिसाइड्स व्हेन द बोरोवर विड्रॉज द लोन अमाउंट फ्रॉम हीज और हर अकाउंट एंड स्पेंड्स इट, देयर इज़ ग्रेटर सर्कुलेशन सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और अभी क्या है कि जब बोरोवर है वो भी वो लोन अमाउंट को विड्रॉ करके फिर कहीं पे स्पेंड करता है, तो भी क्या होता है, जहाँ पे वो स्पेंड करता है वो सामने व्यक्ति के लिए वो क्या हो जाता है, इनकम, और उसके लिए एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पैसा जो है वो बिटवीन द कस्टमर्स एंड द बैंक घूमता रहता है, ठीक है। अभी आगे क्या है, नो बैंक कैन लेंड द फुल अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट। From every deposit, the bank has to keep aside some proportion of money in the form of cash reserves, which is known as cash reserve ratio. Thus, they can lend the remaining money only. कोई भी बैंक है वो अपना पूरा पैसा लेंड नहीं कर देगी, यानी कि लोन तरीके से नहीं दे देगी। कुछ पैसा उसे अपने बैंक में रखना पड़ेगा ताकि बैंक जो है उसका बैंक का रेगुलर रनिंग जो है, उसका डेली लाइफ जो है, बैंक का जो ऑपरेशन है, रेगुलर ऑपरेशंस वो हो सके आसानी है। बैंक पूरी तरह खाली नहीं हो सकती, उसको कुछ पैसा तो अपने पास रखना पड़ेगा। तो कैश रिज़र्व रखना पड़ेगा। रिज़र्व मतलब क्या, साइड पे पैसा रखना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम कैश रिज़र्व रेशियो। तो अगर बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट है 1000 रुपये की और कैश रिज़र्व रेशियो डिटरमाइंड बाय रूल है 20%, देन द बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट अप टू 1000 डिवाइड बाई 1/20। इन अदर वर्ड्स, प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ ₹1000 कैन क्रिएट अ मनी सप्लाई ऑफ ₹5000 एंड इट कैन बी सेड दैट द न्यू क्रेडिट ऑफ ₹4000 इज क्रिएटेड। दिस कैन बी अंडरस्टूड विथ एन एग्जाम्पल। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है। अगर बैंक के पास डिपॉजिट है, 3 तरह के बैंक से ABC, बैंक के पास डिपॉजिट है 1000, 800, 640, उसमें से मुझे 20% जो है वो रिज़र्व रखना है। तो 1000 का 20% होगा 200, 800 का 20% होगा 160, और 640 का 20% होगा 128 रुपये, ठीक है। तो रुपए अभी लिए हैं, ये बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल है, रुपीज़ में नहीं होता, बैंक्स में तो लैक्स एंड क्रोर्स और रुपीज़ होते हैं। तो अगर हम न्यू लोन्स देना चाहते हैं तो 1000 माइनस 200 मतलब 800 होगा, 800 माइनस 160 मतलब 640 होगा, और 640 माइनस 128 मतलब 512 होगा, ठीक है। तो 5000 मेरे पास डिपॉजिट्स थी, उसमें से मुझे 20% यानी 1000 रुपये तो मुझे एज अ कैश रिज़र्व रखना पड़ेगा, और बाकी के जो 4000 है वो मैं पब्लिक को लेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह पैसा अगर घुमाना है तो भी क्या करना है, 20% साइड पे रखना है और बाकी का पैसा ही हम घुमा सकते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन की फॉर्मूला इसमें से हुई है प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 डिवाइड बाय कैश रिज़र्व रेशियो। तो 1000 इंटू 1 डिवाइड बाई 20 करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना रिज़र्व रखना है और कितना मुझे लोन तरीके से देना है, ठीक है। सो व्हेन customers withdraw more money than the deposited amount from their current account, it is called overdraft facility। मैंने आगे समझाया, फिक्स डिपॉजिट में आपकी फ़िक्स डिपॉजिट 50,000 की थी और मुझे 60,000 चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे कि आपके खाते में जितना पैसा था उससे आप ज़्यादा विड्रॉ करते हो। तो आप अगर ज़्यादा विड्रॉ करोगे तो आप ज़्यादा पैसा घुमाओगे, आप खर्चा ज़्यादा करोगे, तो इसलिए भी जो एक्स्ट्रा 10,000 आपने विड्रॉ किए हैं वो भी क्या होगा, एक तरह का क्रेडिट
क्रेडिट क्रिएशन होगा, क्योंकि आप वापस देने वाले हो बैंक को। ऐसा नहीं है कि आप लेके भाग जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं, पर हम जनरली बात करते हैं कि बैंक में से अगर मैंने ज़्यादा पैसा का उपाड़ किया है, ज़्यादा पैसों का विड्रॉवल किया है, तो मुझे वापस देना पड़ेगा बैंक को। लास्ट फंक्शन है इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मतलब एक बैंक में से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना। बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट to one another from time to time. Short term credit is provided by one bank to another through the central bank and it is called call money. The interest rate on call money is called the call money rate. अभी क्या है ये? एक बैंक को ज़रूरत है पैसे की और एक बैंक के पास एक्सेस डिपॉजिट है, एक्सेस पैसा है, तो वो क्या करेगी, जिस बैंक को पैसे की ज़रूरत है वो रिक्वायरमेंट रेज़ करेगी कि मुझे पैसे चाहिए अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए। तो अभी जो बैंक में जो मेन इंटरमीडियरी होता है वो कौन होता है? सेंट्रल बैंक, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो मुझे वहाँ बोलना पड़ेगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? पैसे को कॉल करेगी। कॉल करेगी मतलब क्या? पैसे को मंगवाएगी उस बैंक में से जहाँ पे एक्सेस पैसा पड़ा है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा पड़ा है। ठीक है, तो एक बैंक जो है वो पैसा कॉल करेगी, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक में से पैसा मंगवाएगी जिसके पास ज़्यादा पैसा है और उस बैंक को पैसा देगी जहाँ पे पैसों की ज़रूरत हो। तो इसलिए उसको बोलेंगे कॉल मनी, क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कॉल करेगी मनी को और उस पर जो रेट चार्ज होगा उसको बोलेंगे हम कॉल मनी रेट। पैसा ऐसा ही नहीं देती एक बैंक दूसरे बैंक को, उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है जिसको हम बोलेंगे कॉल मनी रेट। तो ये हुए हमारे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब हम देखेंगे सेकेंडरी अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म सर्टन अदर फंक्शंस एज एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। A bank provides various utility and agent banking facilities to its customers. For example, a bank can act as a mediating agent by providing a letter of credit to the exporter on behalf of the importer. Banks also provide underwriting services to various businesses. अभी ये क्या है? एजेंट की तरह कैसे काम करती है? ठीक है, दो कंपनी है, अगर मेरी एक कंपनी है और मुझे माल मंगवाना है फॉरेन कंपनी से, ठीक है, तो फॉरेन कंपनी में मुझे पैसा देगी या मुझे माल बेचना है फॉरेन कंपनी को, मुझे मंगवाना नहीं है माल मुझे बेचना है फॉरेन कंपनी में। ठीक है, तो मुझे पैसा मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो कंपनी फॉरेन में सिचुएटेड है, तो मैं विश्वास कैसे करूँ? तो मैं क्या करूँगी, वो कंपनी की जो बैंक है उसको कांटेक्ट करूँगी कि भाई ये कंपनी कैसी है, आपसे लोन लिया है तो वो आपको बराबर पेमेंट करती है। तो मैं उस कंपनी को भी बोलूँगी कि अगर आप मुझसे माल ख़रीदना चाहते हो तो मुझे आप पेमेंट करोगे, ऐसी बाहेदारी दो, मतलब ऐसा मुझे विश्वास कराओ। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो फिर मेरे पैसों का क्या? तो वो क्या करेगी कि ठीक है, मैं अपने बैंक से लेटर लिख के देती हूँ कि अगर मेरी कंपनी आपको पैसा नहीं दे पाई तो मेरी बैंक आपको पैसा देगी। तो इसको बोलेंगे हम लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब एक्सपोर्टर जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट मांगेगा। मैं इस केस में एक्सपोर्टर हूँ, मेरी कंपनी, और सामने वाली जो कंपनी है फॉरेन की कंपनी वो इंपोर्टर है। ठीक है, क्योंकि मैं माल भेजना चाहती हूँ और वो माल ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं लेटर ऑफ क्रेडिट मांगूंगी, तो जो उसकी बैंक है फॉरेन कंट्री की, फॉरेन कंपनी की, वो एज ए एजेंट तरीके से काम करेगी और मैं वो बैंक पे विश्वास करके ही फॉरेन कंपनी को अपना माल बेचूंगी। ठीक है, तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक्स कौन सी सर्विस परफॉर्म करती है? एजेंसी सर्विस परफॉर्म करती है। ठीक है, बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू इट्स कस्टमर टू पे टैक्स चैलेंज। टैक्स भरना हो तो हम SBI बैंक जनरली इसमें काम करती है। इनकम टैक्स भरना हो तो आप बैंक में चलन भर के इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्स ऑन रेंट्स टू इट्स कस्टमर्स wherein they can safely store their precious jewelry, documents etc. लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बैंक्स प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज़ फॉर वेरी स्मॉल बिजनेसेस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। व्हेन सम पेमेंट्स आर टू बी मेड विथ फुल प्रूफ सिक्योरिटी, बैंक्स प्रोवाइड सर्विस टू द पेयर बाय इशूइंग ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। तो इस तरह से सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में भी बैंक काम करती है। बैंक ऐसी परमिशन देती है कि ओके, हम आपकी बिहाफ पे पेमेंट कर देंगे अगर आप फेल हुए तो। ठीक है,
दूसरा है प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ विद चेंजिंग टाइम्स. बैंकिंग इज़ एन इवोल्यूशनरी कंसेप्ट. देयर इज़ कंटिन्यूस एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस, एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक्स. इन प्रेजेंट टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ वन कस्टमर to that of any other customer of any bank without using cash or check is done through facilities like NEFT, that is National Electronic Fund Transfer, and RTGS, that is real-time gross settlement system. Both these are possible because of core banking, that is centralized online real-time exchange. तो अभी ये फैसिलिटीज़ से हम एक अकाउंट में से दूसरा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. हमें एक्चुअल कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें वो इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी. हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को, जो किसी भी बैंक का होगा और कहाँ पे भी सिचुएटेड होगा, हम उसको पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे. Besides, customers can get various details of their account as well as make payments, buy goods, book tickets, etc. on their computer or mobile phone through internet banking and mobile banking apps. Banks also provide safe deposit vaults, locker and facilities of डीमेट अकाउंट, जिसमें हम शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं. डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट उसको बोलेंगे, डीमेट अकाउंट को, उसका फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. और बैंक कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल फ़ोन पर हम टिकट्स बुक कर सकते हैं, गुड्स परचेज कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, गैस बिल का पेमेंट करना है, कोई भी और तरह का बिल का पेमेंट करना है, या फिर मोबाइल रिचार्ज करवाना है, वो सब अभी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. This is an account where shares, debentures, bonds, etc. can be held in electronic form, which is easier than holding them in physical form. डीमेट अकाउंट है. पहले क्या था, फिजिकल फॉर्म में हम अगर शेयर खरीदते थे तो हम उसको फिजिकल फॉर्म में रखते थे. अब हम डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिर्फ वैल्यू दिखाएगा, उसमें एक्चुअल शेयर नहीं होंगे. ठीक है, पहले शेयर सर्टिफिकेट इशू करते थे. आपके पेरेंट्स के पास, अगर आप पहले के ज़माने का होगा तो आपके पास पेरेंट्स के पास, अगर आपके पेरेंट्स के पास शेयर होगा तो शेयर सर्टिफिकेट अवेलेबल होंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट अवेलेबल होंगे, बॉन्ड सर्टिफिकेट अवेलेबल होंगे अगर उन्होंने ख़रीदा होगा तो आप शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखना हो तो आप ऑनलाइन देख सकते हो. पहले ऐसा फिजिकल फॉर्म में इशू होता था, तो वो फट जाए, उसको कुछ टाइम के लिए हमें होल्ड करना पड़ेगा जब तक हमने शेयर बेच नहीं दिया. तो उसको होल्ड करना, उसको संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल था. इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो गया ये सब. उसके लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो हम ना कि फ़िज़िकल फॉर्म में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये सब रख सकते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह. ठीक है, तो आज हमने देखा प्राइमरी एंड सर्टन प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना. ओके, थैंक यू सो मच.